हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका चल जीनियस के इस वीकली शो में, जहां हम आपको एक नए गेस्ट से मिलवाते हैं और उनका इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि आपको स्टार्टअप्स के लिए और ज्यादा सपोर्ट मिल सके और ज्यादा आपको हिम्मत मिल सके एंड जो भी आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। सो टुडे वंस अगेन वी हैव आवर गेस्ट मिस्टर अजय लड्ढा। You're welcome to the show, Mr. Ajay Lodha. And before we speak more about, before we interact with you, let me tell you that Mr. Lodha has invested in more than 5 startups right now. For the past 7 years, you have been investing in startups, sir. Yes, sir. Yes. And he is a very well-known businessman, sir, in Calcutta. And sir, you're most welcome to our show. Thank you. So nice to be here. Same here, sir. It's always a pleasure to meet you. Always. And sir, first of all, before we start our interaction with you, our interview with you, I would like to ask you कि आपने जिन स्टार्टअप्स में अभी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किस तरीके के स्टार्टअप्स हैं जहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया है? Majority startups education technology में है. So my personal interest and my personal knowledge in last couple of years has been focused on education startup. इसको छोड़कर we have invested into a video company which makes small videos. There is a company which works with retailers, उनके ये सॉफ्टवेयर बनाती है. So but उसको छोड़ के बाकी सब एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं. So edtech. कोई विशेष का there is special reason that you invest in education startup? सर हम लोग कैसा मानना है कि अभी जहाँ हम खड़े हैं, the maximum impact can be brought in education sector by startups. हमारे देश में बहुत बड़ी जरूरत है और ये जरूरत बहुत there are a lot of problems to be solved in education sectors. So छोटे बच्चों से ये कि कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब जगह बहुत सारे problems के solution I think startups can do. So there is a good opportunity and it's a sector where you can actually do good and make money. So we believe both the things get right. आप सोशल काम भी कर पाते हैं और पैसा भी बना पाते हैं. So when a startup is working in education field comes to you and approaches you for investment, so what are the initial qualities you look at him? See, initial qualities, first thing if you ask me is we look at the team. Team, see, any startup might have to go through, they might not be successful in the plan A, but then they might do plan B, C and might do a pivot. So सबसे important है कि टीम कितनी अच्छी है, उनका commitment towards startup क्या है. बहुत सारे लोग होते हैं कि शौक के ये स्टार्टअप कर लेते हैं कि हमको करना स्टार्टअप कॉलेज में हुआ या काम करते करते लगता है कि हम भी स्टार्टअप कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज यू गेट द टीम एंड देन यू गेट द टेनेसिटी ऑफ डूइंग द बिजनेस. सी आइडिया होना एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, आइडिया होना भी चाहिए, बट एग्जीक्यूशन करना व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड नॉन सक्सेसफुल स्टार्टअप. मोस्ट स्टार्टअप्स फेल जस्ट बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू गुड एग्जीक्यूशन. आप अच्छे से आप जितनी कठिनाइयों के से गुजरते हैं उनको आप कैसे सहन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट वी लुक एट द क्वालिटीज एंड देन नंबर्स देखना और पोटेंशियल देखना वो सब इजी है. दैट दोस मार्केट रिसर्च वी आल्सो डू एंड वी आल्सो हेल्प देम विद दैट, बट टिपिकली हम देखते हैं कि टीम में दम है कि नहीं. सर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, they spend so much time on the proper business plan, proper pitch plan. So they spend a lot of hours. Do you think it's equally important for them to be so much focused, or rather they should be more focused on building their brand? What do you think? See, basic idea होना चाहिए. See हमारे यहाँ lean startup या minimum viable product का concept काफी अच्छा हो गया. See startups के पास resources बहुत कम है. हमेशा there is always shortage of manpower, money, talent. So we don't believe that you should do extensive PR. See, you are not looking at just for funding. See, any startup which has been created to get funded is usually not successful. Startup has to be done to make a good business. True. So you don't need a full 5-year, 10-year plan. That's how that does not happen. आप 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना सोचिए और ठीक है आप मार्केट रिसर्च कीजिए, देखिए सफिशिएंट कस्टमर. इंडिया जैसे देश में हर टाइप के काम के लिए सफिशिएंट कस्टमर है हमारे, हर सेगमेंट में सफिशिएंट कस्टमर. एंड ऐसा नहीं है कि आपको सबको मतलब बिलियन डॉलर कंपनी बननी है, वैसी जरूरत भी नहीं है. यू कैन बी अ स्मॉल सक्सेसफुल स्टार्टअप एंड देयर आर सो मेनी एग्जिट वेज. You can be bought over, you can merge with somebody, you can tie up with intentional people. So important है कि आपका basic concept
Is it sellable? Are you solving a genuine problem? That's how you should look at it. And find your first 20 to 50 customers. That's what we suggest. उसके beyond नहीं सोचना चाहिए. अच्छा. आपने 20 से 25 कस्टमर या 50 कस्टमर्स पहले. That is good enough to decide कि आपने जो सोचा था, जो आपके ब्रेन में था या जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने निकले थे, वो एक्चुअली सॉल्वेबल एट अ कमर्शियल कॉस्ट है कि नहीं, वो प्रूव हो जाएगा. तो जब आप whenever you look for investment in a startup, do you give preference to those startup that are already in a revenue stage, or even you give for startup that just started? So I am more of a early age startup investment, or yeah, my investment have been done when they were very early. See, typically जब आप revenue stage में आ जाते हैं, तो you need different kind of caliber, and you should go to bigger people. Okay. So I am more like an HNI and angel investor. Then you should go to people like Mumbai Angels, or you should go to people like VC funds, or तो वहाँ डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है. तो मेरा पर्सनली फोकस ये स्टार्टअप पे, जहाँ केवल पैसा देना इंपॉर्टेंट नहीं होता. आई थिंक मेंटरशिप, एडवाइस देना, टू गिव देम नेटवर्क, टू कनेक्ट देम आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. True. How can I make my startup investable? If I have a startup, how can I make it investment ready? See, investment ready में मैं बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मैं टिपिकली 2-3 चीजें मैं जो देखता हूँ नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं. पहले ये सोचिए कि कोई भी आप में पैसा क्यों दे, उसके पैसे का सिक्योरिटी या उसके पैसे का रिटर्न क्या. बहुत सारे स्टार्टअप सोचते हैं कि अच्छा मेरा तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये काम मैं करूंगा, मुझे पैसा महीना चाहिए. ऐसा होता नहीं. See, जो पैसा लगाता है उसके तरीके से भी सोचिए. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जस्ट मिस दैट पार्ट. दे डोंट थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी के पास 100 करोड़ रुपए है तो 5 लाख रुपए आपको ऐसे देगा. पॉइंट है कि वो 5 लाख रुपए उसको देंगे जहां उसको लगेगा कि मेरा 5 लाख रुपया 25 लाख रुपया हो सकता है. So, ये सोचना होगा कि why would somebody give me money? सेकंड में मानना है कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत बात ये है ना, अकाउंट्स ही नहीं रखते हैं, हिसाब ही नहीं रखते. सो आपका आइडिया बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, आप टेक्निकली बहुत साउंड हो सकते हैं, बट प्लीज थिंक दिस इज अ बिजनेस, एंड बिजनेस आउटकम इज मनी. So investor is not your godfather. No way. So there is no godfather. I think it's a win-win relationship on both sides. True. See, investment भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी को पैसा दे देता है. True. So और ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी को पैसा मिल जाता है. I think दोनों जीतने important है, और जब वो combination अच्छा बैठता है तभी फायदा होता है. कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि if you got wrong investors, तो वो कई बार बिजनेस बढ़ाने नहीं देते. अच्छा. बहुत ज्यादा दखलअंदाजी हो जाती है. तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट ढूंढने जाएं तो देखिए वो आदमी आपको सूट करता है, बिकॉज डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट माइंडसेट आल्सो. किसी को आज पैसा चाहिए, किसी को 6 महीने में चाहिए, किसी को 5 साल वेट करने का कॉम्बिनेशन. सो आई थिंक इट्स एन इवॉल्विंग काइंड ऑफ अ थिंग. सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको ये देखना होगा कि आप खुद सोचिए कि मेरे पास अगर 25 लाख रुपए मैं अपने स्टार्टअप में डालूंगा. अगर आप वैसे सोच पाते हैं, पैसा अपना समझिए, एंड इफ दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग हैपेंस doing your presentation and all those kind of thing, then it makes a huge difference. Second, you don't need a huge presentation. See, किसी का भी टाइम स्पेंड 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं होता है. आपको इतना सिंपल रखना चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, एंड व्हाई आई एम गुड एट गिविंग दिस सॉल्यूशन. 3-4 चीजें बताइए, बाकी जो होगा वो कहानी बाद में हो सकती है. मैंने देखा लोग पीपल कम विद 40 स्लाइड्स और उसमें 5 साल का प्रेजेंटेशन, ये डाटा, वो मैं बाद में मान सकता हूँ अगर मैं आप में इंटरेस्ट होगा. See, think like if you're trying to make a new girlfriend, you won't give a proposal from day one. You have to date them, filter. कजोल करना पड़ेगा. Yes. So filter on that. तो आपको छोटे में समझाना पड़ेगा कि भाई you are interesting for somebody to come and talk to. I think that has to happen. That is the way the mindset should be there for a new startup. एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि सर कि इन्वेस्टर भी startup should also look for right kind of investor. So, from other point of view, if I ask you what the startup should look at an investor when he's going to somebody, what are the qualities that ये investor के लिए सही हो सकता है, तो वो क्या investor startup को देखना चाहिए उसमें? See, startup को देखना चाहिए कि वो जो पैसा दे रहा है वो क्यों दे रहा है. Is it just a small sort of money for him that he's trying to play कि मेरे को 25 इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है 10 डूब जाएंगे कोई बात नहीं, या वो कुछ टाइम भी देगा. Will he bring some network? So, I think some of those investors should be those kind of things. सब इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे मेंटर्स होने चाहिए जिनके पास मैं कभी भी जा सकता हूँ. मैं एक फोन उठाऊं तो वो मेरे से बात करेंगे, वो मेरी कहानी समझेंगे. मैं इट्स नॉट लाइक आई एम इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टॉक मार्केट
कि मैंने कुछ स्टॉक खरीद दिया फिर मैं भूल गया। हाँ, मैं भूल भी गया, मेरे को क्या भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है वो समझेंगे, ऐसा नहीं है। These people need advice, help, mentorship, और उनका दुखड़ा सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। See, people go through problems. Every startup does that. So guys, still we have lot of questions to ask Mr. Latha, and there are so many other things like what are the pros and cons of investment rounds, you know, and what his advice for the early stage startups. ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे, लेकिन वो आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सेकंड वीडियो भी इसका जल्दी आएगा। तब तक दीजिए हमें इजाजत और करिए हमारे सेकंड वीडियो का इंतजार। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जैसा ही कोई नया वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।